Okay, can anybody tell me what we have discussed in previous lecture? Hello, audible? Yes, ma'am. Okay. So we have discussed about the functions of your operating system. We have discussed the services of operating system. Then we have seen the layered approach of your operating system. After that, we have started the types of OS, that is types of operating systems. Okay, we have seen the difference between real-time operating system, soft real-time and hard real-time. Okay, and after that we have started the next point, which is what? Process management. Okay, so what is a process? A program in execution is called as a process. So let me share the PPTs. Is screen visible? Yes, ma'am. Okay, so what is the process? A process is basically a program in execution. Okay, and the execution of a process must progress in a sequential fashion. Okay, so we have discussed this also. Process in memory. When your process is loaded into your memory, then it divides into the 4 sections: the stack, heap, data, and text. Okay, stack will hold all the temporary data such as method, functions, parameters, return address, and all the types of local variables. Heap is nothing but is a dynamically allocated memory. Okay, to a process during its runtime. And text is nothing. Text includes the current activity, the represented by the value of program counter, and the contents of your processor's registers. Okay, and finally the data is nothing but it contains the global and the static variables. Okay, we have also seen this diagram, process state diagram. Okay, there are 5 states. Okay, start, ready, running, terminated, wait. Okay, ये 5 processes are there. ओके तो जब भी नई प्रोसेस क्रिएट होती है वो स्टार्ट स्टेट में आती है. जब वो रेडी टू एग्जीक्यूट होती है, ओके मतलब उसको प्रोसेसर अलोकेट नहीं किया जाता है, बस इट इज रेडी टू एग्जीक्यूट, देन दैट प्रोसेस विल कम इनटू द रेडी स्टेट. आफ्टर दैट इफ प्रोसेसर गेट्स अलोकेटेड टू दैट process, then it will move to the running state. Okay, if that process requires any input and output devices, then it will come to the wait state. Okay, after finishing the time with your input and output devices, it will come back to the ready state. And finally, when processor will get free, it will allocate it to the processor, and after its execution, it will go to the terminated state. Okay, so we have seen these 5 types of states also. Okay, running, waiting, terminated also. Okay, so the next point is what? Process control block. Okay, before that we have seen the process, what definition of process, that is the process is a program in execution. Okay, so I would like to share a live demo with you. आप मेरे जो सिस्टम में कितनी प्रोसेसेस अभी करंटली रनिंग हो रही है और उस प्रोसेस ने कितने रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं, आई वुड लाइक टू शो. ओके, सो सिंपली आई विल यूज माय टास्क मैनेजर हियर. Just a second, it will take time. ओके, करंटली जो भी मेरा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में, उसके अंदर 4 प्रोसेसेस आर रनिंग. ओके, आपको टास्क मैनेजर दिख रहा है? यस और नो? No, ma'am. ओके, जस्ट अ मिनट.
Yes, is it visible? Yes, ma'am. ओके, सो आपको पहले यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसेसेस. ओके, ये प्रोसेसेस आर नथिंग बट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. जो भी सारे प्रोग्राम्स आपके सिस्टम में अवेलेबल है करंटली जो रन हो रहे हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसेस बोलते हैं. ओके, तो करंटली मेरे यहाँ पे 4 प्रोसेस है. फायरफॉक्स मेरा ओपन है, दैट्स व्हाई फायरफॉक्स इज माय प्रोसेस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इज देयर बिकॉज आई एम using the PPTs. So PowerPoint is also on process. Microsoft Teams is also process, and Task Manager itself is a process. Okay, so you can see the apps or the programs which are in the running state. These are nothing but the processes. You can so calculate your definition here. Okay, a program in execution is called as process. तो ये सारे programs है, ये मेरे application programs है, but इनको जब मैं run करती हूँ that becomes a process. ओके, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे प्रोसेसेस के ऊपर मैंने टैप किया है. ये जो टैब मैंने ओपन किए वहाँ पे 4 प्रोसेस वो जो मुझे दिख रही है फोरग्राउंड प्रोसेस है. ओके, और बैकएंड में बहुत कुछ चल रहा है बैकग्राउंड प्रोसेसेस. ओके, जो मुझे नहीं दिख रही है. ओके, सो दिस Cortana 64-bit syntax pointing enhancement. ओके, एंटी मालवेयर सर्विस दैट इज एंटीवायरस एंड ऑल दैट. दीज आर द बैकग्राउंड प्रोसेसेस. और जो करंटली मैंने 4 एप्लीकेशंस ओपन करके रखे दैट माय 4 प्रोसेसेस ओवर हियर. ओके, नाउ फायरफॉक्स कितना सीपीयू यूज कर रहा है, 0%. ओके, तो ये सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, दीज आर द रिसोर्सेस. ओके, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, दीज आर द प्रोसेसेस. तो हर एक प्रोसेस कितना अमाउंट ऑफ दैट रिसोर्सेस को यूज करिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, तो कभी सीपीयू अभी 0% यूज किया गया है. फायरफॉक्स ने मेरी मेमोरी मेरी जो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी 384 MB यूज की है. हार्ड डिस्क ड्राइव में से कितने स्पीड से वो डेटा एक्सेस कर रहा है और नेटवर्क कितना यूज करा है, ये सारी चीजें यहाँ पे मुझे दिख रही है. तो आपकी जो प्रोसेस है दैट कैन शेयर द रिसोर्सेज, दैट कैन यूज द रिसोर्सेज. सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, नेटवर्क, दीज आर नथिंग बट योर रिसोर्सेज. यू कैन आल्सो सी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू. ओके, दीज आर आल्सो रिसोर्सेज. तो ये 4-5 क्या है हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज है एंड दैट आर यूज बाय योर प्रोसेस. ओके, सो तो कितना यूज किया यहाँ पे एनालिसिस भेजा गया. परफॉर्मेंस सीपीयू कितना 30% यूज किया है. मेमोरी आई थिंक 82% यूज की है. डिस्क 78, 70, कभी 34, ये चेंज हो रहा है. ओके, ओके, नाउ ये जो सारी प्रोसेसेस जो है मेरी, ओके, तो ये आपको स्टेटस यहाँ पे दिख रहा होगा रनिंग. तो अभी हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा है. ओके, तो अभी करंटली ये क्या हो रही है, रन हो रही है, इसलिए इसका स्टेटस क्या है, रनिंग है. आप चेक कर सकते हो. ओके, अभी जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि वेट स्टेट को अबॉर्ट भी बोला जाता है, सस्पेंडेड भी बोला जाता है. तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग नाम है उनके प्रोसेस स्टेट्स के. तो कुछ प्रोसेस यहाँ पे आपको सस्पेंडेड दिखाई देंगी. ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो सस्पेंडेड, यहाँ पे भी सस्पेंडेड, बाकी सारी रनिंग है. आप ऐसे इस तरीके से चेक आउट कर सकते हो. दो नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. ओके, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में अबॉर्ट लिखा जाता है, किसी में वेट लिखा जाता है, किसी में सस्पेंड लिखा जाता है, लाइकवाइज. ओके, और ये सारी है आपकी सर्विसेज, स्टॉप्ड, रनिंग, स्टॉप, ये क्या है, प्रोसेस स्टेट्स के नाम है. ओके, सो in this way your computer system using this processes. Okay, so any doubt here, is there any doubt? Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so the next topic is what, process control block. ओके, तो हर एक प्रोसेस के साथ उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आता है. तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है वो हम देखते हैं. सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज मेंटेन्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरी प्रोसेस. तो हमारी जितनी भी प्रोसेसेस अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, तो हर एक प्रोसेस के साथ एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आता है. ओके, तो बहुत सारे प्रोसेसेस है, तो बहुत सारे क्या होंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे. तो इनको फाइंड आउट कैसे करना है, इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है. ओके, तो हर एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के साथ उसका एक प्रोसेस आईडी आता है. ओके, तो हर एक पीसीबी मींस व्हाट, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. ओके, इट इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर प्रोसेस आईडी, दैट इज पीआईडी. तो हर एक प्रोसेस का एक आईडी होता है और उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हर एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, और उसी प्रोसेस आईडी को क्या बोलते हैं, पीआईडी.
ओके, सो लेट्स सी द डायग्राम। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस आईडी। आफ्टर दैट स्टेट हमारे पास कितनी है? 5, स्टार्ट, रेडी, रनिंग, अबॉर्ट, और वी कैन से द ब्लॉक, देन रनिंग एंड देन टर्मिनेटेड। तो इनमें से कौन सी स्टेट में आपकी प्रोसेस है ये यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अगेन पॉइंटर है, पॉइंटर विल हेल्प यू टू चेक द करंट सिचुएशन और करंट एक्टिविटी। देन प्रायोरिटी, कौन सी प्रोसेस की क्या प्रायोरिटी है। प्रोग्राम काउंटर विल गिव यू द नेक्स्ट process which trying to execute. CPU registers will hold the information. Input output devices कौन से यूज किए वो information IO information में रहेंगे, और अकाउंटिंग information में सारी प्रोसेस रिलेटेड information रहेंगे. Let's see one by one, हर एक का information हमारे पास है available. Okay, so these are the contents of your process control block. Okay, तो पहला आता है process ID, उसके बाद state, then pointer, priority, program counter, CPU registers, IO information and accounting information. Okay, so let's discuss this one by one. तो पहला है प्रोसेस स्टेट. ओके, तो ये प्रोसेस स्टेट जो है ये क्या बताता है? द करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस. ओके, रेडी, रनिंग, वेटिंग. ओके, कौन सी स्टेट में वो प्रोसेस करंटली अवेलेबल है ये स्टेट यहाँ पे दी जाती है. ओके, आफ्टर दैट प्रोसेस प्रिविलेजेस. ओके, दिस इज रिक्वायर्ड टू अलाउ और डिसअलाउ एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज. अभी हमने सिस्टम रिसोर्सेज देखे हैं, मेमोरी, सीपीयू, जीपीयू, डिस्क, नेटवर्क, दीज आर द रिसोर्सेज. ओके, तो ये जो प्रोसेस प्रिविलेजेस है ये क्या करता है? इट रिक्वायर्ड टू अलाउ और डिसअलाउ एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज. मतलब कौन सी प्रोसेस किस सिस्टम रिसोर्सेज को यूज कर सकती है या नहीं कर सकती, ये परमिशन लेने के लिए ये होते हैं प्रोसेस प्रिविलेजेस. ओके, अगेन नेक्स्ट इज व्हाट? प्रोसेस आईडी. ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच ऑफ द प्रोसेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमें क्या करना है? हर एक प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है. फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर्ड प्रोसेस आईडी. ओके, नाउ पॉइंटर. पॉइंटर इज टू पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस. ओके, हर एक प्रोसेस किसी पेरेंट प्रोसेस से बनी हुई है. ओके, तो ये इस प्रोसेस का पेरेंट कौन है? ओके, दैट विल बी टेल बाय दिस पॉइंटर. अ पॉइंटर टू पेरेंट प्रोसेस, दैट इज नथिंग बट योर pointer here. Okay, now program counter. So program counter is a pointer to the address of the next instruction to be executed for this process. Okay, currently मेरी एक प्रोसेस रन हो रही है, तो अभी इस प्रोसेस में कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मुझे एग्जीक्यूट करनी है ये कौन बताएगा? मुझे प्रोग्राम काउंटर बताएगा. Okay, after that CPU registers. तो various CPU registers where process need to be stored for execution for the running state. Okay, अभी मेरी क्या हो रही है? प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसे क्या लगेगा? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुछ CPU रजिस्टर्स लगने वाले हैं. ओके, तो ये भी काम यहाँ पे CPU रजिस्टर्स करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम. ओके, आफ्टर दैट CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन. ओके, प्रोसेस प्रायोरिटी एंड अदर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू शेड्यूल द प्रोसेस. ओके, अभी ये CPU शेड्यूलिंग क्या है ये आपको पता नहीं है, जिससे कि हम आगे ये पॉइंट देखने वाले हैं. ओके, let me tell you one example. For example, we are having 5 processes with us. Okay, and we are going to execute these 5 processes. Okay, अगर इन processes को मुझे execute करना है तो मुझे requirement किसकी है? प्रोसेसर की है. Okay, तो प्रोसेसर मेरे पास एक ही है, लेकिन प्रोसेस जो है वो 5 processes है. ओके, तो 5 प्रोसेस को एक ही प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा, तो किसको पहले शेड्यूल करना है? P1 को एग्जीक्यूट करना है या P2 को करना है? तो इट विल बी डिसाइडेड बाय योर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. ओके, तो ये पॉइंट भी हमें स्टडी करना है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. ओके, तो ये CPU शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन विल होल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट शेड्यूलिंग. तो कौन सी एग्जीक्यूट करनी है? Okay, next memory management information. Okay, this includes the information of page table, memory limit, segment table, depending on memory used by the operating system. Okay, so how your memory is divided into this paging and segment. Okay, so this information is held by your memory management information. Okay, now accounting information means what? This includes the amount of CPU used for process execution time limits and execution ID. तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन क्या? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि कितना अमाउंट ऑफ सीपीयू आपके प्रोसेस ने यूज किया है फॉर द एग्जीक्यूशन, कितने टाइम के लिए यूज किया है, और उसका एग्जीक्यूशन आईडी क्या है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रहेंगी. ओके, आफ्टर दैट आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन. ओके, सो द लिस्ट ऑफ IO डिवाइसेस अलोकेटेड टू द प्रोसेस. तो हर एक प्रोसेस के लिए कितने IO डिवाइसेस अलोकेट किए हैं या डीअलोकेट किए हैं, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन विल बी होल्ड बाय IO स्टेटस इंफॉर्मेशन. ओके, सो आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में इतने चीजें भी रह सकती है, या कोई अभी हमने प्रोसेस प्रिविलेजेस,
अगेन मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें भी डिस्कस की है। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हर एक प्रोसेस कंट्रोल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। Okay, but this much you have to tell, or this much you have to write about this process control block. Okay, again, so this is your process control block. This is a data structure which is maintained by your operating system for each and every process. Okay, and the process ID is very important in this case, because by using this process ID we are going to identify a particular process control block. Okay, so any doubt in here? यहाँ पे कुछ डाउट किसी को? No, ma'am. Okay, so the next point is what? Process scheduling queues. Okay, before starting the process scheduling algorithms, we need to know what is process scheduling queues. Okay, so the operating system maintains the following important process scheduling queues. Okay, the first is job queue, the second is ready queue, and the third one is device queue. It's very easy and very simple. Okay, so job queue क्या हो सकता है? Okay, this queue keeps all the processes in the system. Queue basically you know that data structure में आपने पढ़ा होगा queue क्या होता है. Queue is a data structure, okay, or which works on FIFO basis, first in first out. ओके, सो फर्स्ट मेरा क्यू है मेरी सिस्टम में विच इज जॉब क्यू. तो हर एक प्रोसेस, ऑल द प्रोसेसेस आर स्टोर्ड इन दिस क्यू. ओके, जॉब क्यू. आफ्टर दैट रेडी क्यू. ओके, दिस क्यू कीप्स अ सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी, रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट. ओके, सो रेडी क्यू में क्या होता है कि इट विल कीप all the processes which are residing in your main memory. Okay, and these processes are ready and waiting for the processor. ओके, तो रेडी टू एग्जीक्यूट है ये प्रोसेसेस, लेकिन इनको अभी तक प्रोसेसर अलोकेट नहीं हुआ है. तो ऐसी प्रोसेस जो रेडी टू रन है लेकिन उनको प्रोसेसर अलोकेट नहीं हुआ है, दैट प्रोसेस विल स्टोर इन दिस रेडी क्यू. ओके, आफ्टर दैट डिवाइस क्यू. जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है कि जिन प्रोसेसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस लगने वाले हैं, तो दैट प्रोसेसेस विल स्टोर्ड इनटू दिस डिवाइस क्यू. ओके, और वी कैन से द प्रोसेसेस व्हिच आर ब्लॉक्ड due to the unavailability of an input output devices will constitute this queue. Okay, तो इस queue में जिनको जो प्रोसेस ब्लॉक हुई है क्योंकि उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं मिला है, तो वो प्रोसेसेस डिवाइस क्यूज में रहने वाली है. ओके, एनी डाउट इन दिस थ्री क्यूज? यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. ओके, सो फर्स्ट हमारा जो होता है वो हमेशा था जॉब क्यू. हर एक पॉइंट, हर एक टाइप की जो प्रोसेस होती है जॉब क्यू में रहेंगी. ओके, उसके बाद रेडी क्यू है हमारा. रेडी क्यू में ऐसी प्रोसेसेस रहेंगी जो कि रेडी टू एग्जीक्यूट है. ओके, लेकिन रनिंग स्टेट में नहीं है, वो रेडी है लेकिन उनको अभी प्रोसेसर नहीं मिला है, सीपीयू नहीं मिला है एग्जीक्यूट होने के लिए. ओके, तो वो प्रोसेसेस रहेंगी रेडी क्यू में. आफ्टर दैट जब भी प्रोसेसर फ्री होगा तो इट विल एक्सेप्ट एंड प्रोसेस फ्रॉम दिस रेडी क्यू. इट विल एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस एंड इफ इट वांट्स एनी इनपुट आउटपुट device, okay, it will send that process to the input output waiting queue, and after that when input output device get free, then it will perform this input output operation and come back to the ready queue, and finally it will move again to the CPU and finish its execution, and it will exit from this queue system. Okay, in this way this process scheduling queues works. So any doubt is here? तो इस तरीके से आप ये तीन क्यूज को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. So the OS can use different policies to manage each queue. For example, FIFO, round robin, priority. These are the scheduling algorithms. अगर आपको प्रोसेसेस को शेड्यूल करना है तो you have to use this algorithms, और उनके ऊपर आपको सम्स भी आते हैं एग्जाम में. Okay, so this is an process scheduling queues: job queue, ready queue, and input output waiting queue. Input output queue, you can say device queue also. Yes, is there any doubt? No, ma'am. Okay, so the process schedulers. Okay, तो schedulers क्या है वो देखते हैं पहले. Schedulers are a special systems software which handle process scheduling in various ways. Okay, schedulers क्या है? These are the special system softwares which handle the process scheduling in various ways. Okay, their main task to select the jobs or the process to be submitted into the system and to decide which process to run. ओके, तो शेड्यूलर्स का काम क्या है?
कौन सी भी एक जॉब या कोई भी एक प्रोसेस को चूज करना, सिलेक्ट करना, उसके बाद सिस्टम में सबमिट करना एंड डिसाइड करना कि कौन सी प्रोसेस अभी रन होने वाली है। ओके, तो शेड्यूलर्स के भी 3 टाइप्स है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इसके ऊपर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था एंड सेम एग्जाम में कि डिफरेंशिएट बिटवीन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इन तीनों में क्या करो, डिफरेंस दो। ये लास्ट टाइम इन सेम में क्वेश्चन आया था। ओके, सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस फर्स्ट. Okay, so long term scheduler, short term scheduler and medium term scheduler. Okay, तो long term scheduler is a schedule, अगर आपको job means what, processes, task. Okay, so it is a job scheduler, it schedules the processes. Okay, short term scheduler means what, it is a CPU scheduler, it will schedule the CPU, मतलब process के लिए CPU को schedule करेगा. After that, speed is less. Mid term scheduler क्या है, it is a process swapping scheduler. Okay, so it will check the processes, it will swap the processes between the CPU and the queues. This is the medium term scheduler. Speed is lesser than the short term scheduler. तो long term scheduler का जो भी speed है वो क्या है, very less, because long term scheduler is far away from your CPU. Okay, speed is fastest among other two, because short term scheduler is near to the CPU, or we know that CPU is the fastest one. So the speed of short term scheduler is what, fast. Speed is in between both short term and long term scheduler. तो medium term का जो भी speed है इन दोनों के बीच में है. Okay, so it controls the degree of multi-programming. Multi-programming means what, multiple programs runs at a time. It controls mean what, the less degree of multi-programming is there in long-term scheduler. Okay, again it provides a lesser control over degree of multi-programming. Okay, तो मतलब क्या यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा processes क्या हो सकती है, रन हो सकती है. Okay, and it reduces the degree of multi-programming. Medium-term scheduler में क्या हो रहा है, it reduces the degree of multi-programming. And the fourth difference is what, it is almost absent or minimal in time sharing system. तो long term scheduler कहाँ पे use नहीं किए जाते, time sharing system में use नहीं किए जाते. Okay, again also short term scheduler also minimal in the time sharing system. Okay, but medium term schedulers are nothing but that are the part of your time sharing system. Okay, जहाँ पे time sharing system use की जाती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, medium term scheduler use करते हैं. Okay, और fifth difference, last difference between these three is what, it selects the processes from the pool. Pool means what, the buffer, the memory area where the processes are currently available. Okay, so it selects the processes from the pool and loads them into the memory for execution. Okay, तो ये pool में से processes को select करता है और memory में load करता है for the execution, long term scheduler का काम. Okay, now short term scheduler क्या करेगा, it selects those processes which are ready to execute. Okay, तो ये क्या करेगा, शॉर्ट टर्म जो प्रोसेसेस रेडी टू एग्जीक्यूट है उनको ही सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द पूल. ओके, सो इन द केस ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर इट कैन रीइंट्रोड्यूस द प्रोसेस इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूशन कैन बी कंटिन्यूड. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मीडियम टर्म का काम क्या है, स्वैपिंग ऑफ द प्रोसेसेस. तो ये क्या करेगा, रीइंट्रोड्यूस, एक बार निकालेगा. स्वैपिंग मतलब क्या, टेक इन टेक आउट. ओके, सो एक बार उसको डालेगा वापस से उसे टेक इन करेगा. ओके, तो ये एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्वैपिंग. ओके, सो दीज आर द 5 differences of this long term scheduler, short term scheduler and medium term scheduler. Any doubt in this? No ma'am. So the next is what, the very important part we are going to start, that is types of process scheduling algorithms. Okay, और हर एक algorithm पे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि आपको क्या करना है. एक प्रोसेसेस दी जाएंगी, उनका अराइवल टाइम दिया जाएगा और इनमें से किसी एक शेड्यूलिंग algorithms को यूज करके आपको वो सम सॉल्व करना है. Okay, before starting the sums problems we will complete the theory in this lecture, and in tomorrow's lecture we will start the problems. Okay, so the types of process scheduling algorithms. तो जैसे कि हमने पहले उसकी नीड क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की नीड क्या है ये हमें पता है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसर एक ही है, प्रोसेसेस बहुत है. ओके, और हमें क्या करना है, उन प्रोसेसेस को प्रोसेसर के पास भेजना है फॉर द एग्जीक्यूशन. ओके, लेकिन कौन सी प्रोसेस को भेजना है, मतलब जो पहली आई है उसको भेजना है, या जिसको कम टाइम लगने वाला है एग्जीक्यूशन के लिए उसको भेजना है, या जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है उसको भेजना है. ओके, या जिसका शॉर्ट रिमेनिंग टाइम है उसको भेजना है. ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंसीडर करके हमें क्या करना होता है, प्रोसेसेस को प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजना है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट्स दे हैव इंट्रोड्यूस सम
algorithms for us to select one appropriate process for the processor to execute. Okay, so process scheduler schedules the different processes to be assigned to the CPU based on some particular scheduling algorithms. Okay, तो process scheduler का काम क्या है? Schedule करना processes को for the CPU to execute. Okay, ये जो different processes का assignment जो है CPU के पास, that is based on some particular scheduling algorithms. Okay, so there are 5 scheduling algorithms. First come first serve scheduling, shortest job next या shortest job first scheduling, priority scheduling, shortest remaining time first scheduling, round robin scheduling. Okay, these are the 5 types of your process scheduling algorithms और हर एक के criteria क्या है, different है. Okay, तो first we will start first come first serve. Okay, so before that we need to understand what is primitive algorithms or primitive scheduling algorithm and non-primitive scheduling algorithm. Okay, so non-primitive क्या होता है? These are the algorithms are designed so that once a process enters the running state, it cannot be preempted until it completes its allotted time. Okay, तो non-primitive क्या होता है? अगर कोई प्रोसेस नॉन प्रिमिटिव है या कोई अल्गोरिदम क्या है, नॉन प्रिमिटिव है, मतलब अगर वो रनिंग सेट में चला गया मतलब क्या, वो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, वो करंटली प्रोसेसर के पास है, प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर रहा है. एक बार वो प्रोसेसर के पास चलेगी ये वो प्रोसेस, तो ये हम उसे निकाल नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल वो 2 सेकेंड्स के लिए उसका फिनिश टाइम, मतलब वो 2 सेकेंड की प्रोसेस है, उसे 2 सेकेंड्स लगने वाले फिनिश होने में. ओके, तो जब तक 2 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब हम उसे निकाल नहीं सकते, तब तक उसे निकाल नहीं सकते. दैट इज नथिंग बट योर नॉन प्रिमिटिव. Okay, and primitive is reverse of it, that is it is based on the priority where scheduler may preempt a low priority running process anytime when a high priority process enters into the ready state. करंटली एक P1 प्रोसेस को प्रोसेसर रन कर रहा है. ओके, अभी P3 आई है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट है, और जो P1 है उसकी बहुत लो है. तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम उस प्रोसेस को प्रोसेसर से निकाल सकते हैं, CPU से निकाल सकते हैं, और जिसकी प्रायोरिटी हाई है उसे वो हम एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर के पास भेज सकते हैं. तो नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या, वी कांट रिमूव दैट प्रोसेस फ्रॉम द प्रोसेसर, एंड प्रिमिटिव मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी वी कैन remove that process from the processor. Okay, so do you understand the difference between these two, preemptive and non-preemptive? Because this is very important. When we see the different algorithms, these two things are very important, non-preemptive and preemptive. Yes, is there any doubt in this? Yes? No, ma'am, no doubt. Okay, so non-preemptive and preemptive. So the very first algorithm of process scheduling is what, first come first serve. It is very simple. Okay, the jobs means what, the processes, the tasks are executed on the first come first serve basis. It is a non preemptive scheduling algorithm. Non preemptive मतलब क्या, एक बार प्रोसेसर के पास चली गई, then we can't preempt that, we can't take out that process from the processor. Okay, it is very easy to understand and implement. Okay, ये जो algorithm है ये बहुत easy to understand है और implement करने के लिए भी easy है. Its implementation is based on the FIFO queue. Okay, तो इसका जो implementation है it is based on the FIFO, that is first in first out. जो process पहले आई है वो पहले execute होगी, जो process बाद में आई है वो बाद में execute होगी. Okay, so poor in performance as average waiting time is high. Okay, तो इसका performance जो है वो बहुत पुअर है, बिकॉज एवरेज वेटिंग टाइम हम जब कैलकुलेट करेंगे ऑफ द ऑल प्रोसेसेस देन इट विल हाई. That's why that is a disadvantage of this first come first serve, that it is a poor in performance because average waiting time is very high. This is the first algorithm. Okay, so next, shortest job first or shortest job next. Okay, shortest job first is also known as shortest job next. Okay, so this is also a non preemptive scheduling algorithm. तो ये भी क्या है, non preemptive scheduling algorithm है. तो ये एक बार ये प्रोसेसर के पास चली गई, then we can't preempt that process. Okay, so the best approach to minimize waiting time, इस एल्गोरिथम को यूज करके हमें क्या मिलेगा, वेटिंग टाइम सबसे कम मिलने वाला है. ओके, इजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच systems where required CPU time is known in advance. Okay, ये जो algorithm है हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें CPU टाइम, हर एक प्रोसेसर का हर एक प्रोसेस का CPU टाइम क्या होगा पहले से ही पता होगा, then we will execute or we will implement this shortest job first algorithm for the processes. Okay, and batch systems में क्या होता है, जो हमें required CPU टाइम है वो हमें पहले से पता होता है, तो these algorithm
or this algorithm is used, or this algorithm is very easy to implement in your batch systems. Okay, so impossible to implement in interactive systems where this required CPU time is not known. Okay, अगर हम currently time sharing system या interactive system में इसे use करना चाहे तो ये possible नहीं होगा, because the process का CPU time हमें पहले से पता नहीं होता है. Okay, shortage of first का ये क्या है, disadvantage है. Okay, the processor should know in advance how much time a process will take. तो process execute होने के लिए कितना time लेगी, तो ये processor को पहले से पता होना चाहिए, तभी अब इस algorithm को हम क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं. Okay, next scheduling algorithm is what? Priority. Priority scheduling is also non-preemptive. एक बार processor के पास चली गई, then वो execute होके ही वापस आएगी. Okay, so one of the most common scheduling algorithm in batch systems. Again, batch system में ये कॉमन या मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है. ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी. इसमें एक चेंज क्या है कि हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की जाती है इस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में. ओके, द प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन. तो यहाँ पे कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं होता है, या यहाँ पे जिसका सीपीयू टाइम सबसे कम है वो पहले जाएगी, ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी चेक करते हैं. पहले प्रायोरिटी चेक करते हैं कि प्रायोरिटी क्या है इसकी, उसके बाद हम प्रायोरिटी चेक करके अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो पहले इसको भेजेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल 5 प्रोसेस है, P1 की सबसे कम प्रायोरिटी है, P5 हाईएस्ट प्रायोरिटी तो P5 पहले जाएगी. ओके, तो दिस इज द केस प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. देन प्रोसेस विथ सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. अगर ऐसा हो कि दोनों प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है तो क्या करना है, तो हमें अराइवल टाइम चेक करना है, वो प्रोसेस कब आई है सिस्टम में, और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड that the first come first serve, जो पहले आई है वो पहले जाएगी. Okay, now priority can be decided based on the memory requirements, time requirements or any other resource requirement. तो priority कैसे decide की जाती है, which is based on your resources requirement, that is memory requirement, time requirement or any other resource requirement. Okay, so this is what your priority scheduling. The next is what, shortest remaining time first. Okay, so this algorithm is a primitive version of your SJN, shortest job. Next है shortest job first. Shortest job first में क्या करते थे हम लोग, पहले CPU टाइम कितना लगने वाला है ये पहले अगर पता है तभी हम उस एल्गोरिथम को यूज करते हैं. तो ये वो नॉन प्रिमिटिव था, एक बार प्रोसेसर के पास चली गई तो वो खत्म होके बाहर आएगी. लेकिन shortest remaining time is the primitive version of that SJF, okay, or SJN. So the processor is allocated to the job closest to completion, but it can be preempted by newer ready job with shorter time to completion. मतलब क्या है यहाँ पे कि प्रोसेसर को एक प्रोसेस अलोकेट की है जो कि अभी खत्म होने ही वाली है, बट इट कैन बी प्रिम्प्टेड बाय अ न्यूअर रेडी जॉब. बट ये प्रिम्प्ट हो सकता, प्रिम्प्ट मतलब क्या, हम प्रोसेसर से उसे निकाल रहे हैं. ओके, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी प्रोसेसर है जिसका टाइम जो शॉर्टर है, कंप्लीशन टाइम क्या है, शॉर्टर है. मतलब उसको फॉर एग्जांपल अभी जो करंट प्रोसेसर के पास है उसको 2 सेकेंड लगने वाले कंप्लीट होने में, और रेडी क्यू में क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको 1 सेकेंड ही लगने वाला है. ओके, तो वो 2 सेकेंड वाली निकालेंगे, 1 सेकेंड वाली पहले डालेंगे और वो एग्जीक्यूट होगी. ओके, सो दिस इज द प्रिम्प्टेड वर्जन ऑफ योर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. So it is impossible to implement in interactive systems where required CPU time is not known. Again the same thing. अगर पहले से CPU time आपको पता नहीं है तो आप इसे use नहीं कर सकते हो. Okay, so it is often used in batch environments where short jobs need to be given preferences. तो batch systems जो हमारी है तो वहाँ पे shorter job वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे आप ये क्या कर सकते हो, इस एल्गोरिथम को यूज कर सकते हो. Okay, and the very last and important is round robin. It is very complex to solve also. Okay, it requires very much attention to solve this problem, round robin scheduling. Okay, round robin is a primitive process scheduling algorithm. Okay, you can say this is a primitive version of FIFO या first come first serve जो हमारा first algorithm था, that is the non primitive version of this round robin. Okay, round robin is a primitive version of your first come first serve. Okay, so each process is provide a fixed time to execute. It is called as quantum.